پر آپ کے ساتھ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین، ہمارا یہ شو آپ ہر جمعے کو 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا. سامعین، شو کے اس گھنٹے میں ہم بات کریں گے اولڈ ایج اینڈ ہیلتھ ایشوز کے بارے میں، یعنی بڑھاپا اور اس سے ہونے والی کیا کیا صحت سے متعلق کیا مسئلے آ سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. ویسے اگر ہم بات کریں تو بڑے بزرگ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. لمبی زندگی والے لوگ یا بزرگ نہ صرف ہمارے خاندان کی ترقی کے لیے اہم ہوتے ہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا چیز منسلک ہے؟ ان کی صحت. سب سے امپورٹنٹ چیز ان بزرگوں کی اچھی صحت. اگر سامعین بات کریں تو پوری دنیا میں جو اگر ہم اس کی شرح پہ بات کریں کہ کتنا تیزی سے بڑھاپا اگر بڑھ رہا ہے تو تقریباً 12% سے 22% تک جا سکتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں 2015 سے لے کر 2050 تک کی بات کریں تو 900 ملین سے 2 بلین تک اس کی شرح بڑھ سکتی ہے. سامعین، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر ہم 30 سال پہلے چلے جائیں تو صحت کے اتنے مسائل نہیں تھے، لیکن اگر ہم آج اپنے بوڑھے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی تندرستی، ان کی صحت مندی اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی. کیا وجوہات ہیں؟ اس کے اوپر ہم نے اسپیشلی یہ شو پلان کیا ہے. ہر گھر میں بڑے بزرگ موجود ہوتے ہیں، ان کا کیسے خیال کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جس پہ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دینا. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمر عباس جعفری موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. MRCP UK، FCPS، FRCP ایڈن اینڈ FRCP گلاسگو، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف انٹرنل میڈیسن، لیاقت نیشنل ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر سمر عباس، ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون. وعلیکم السلام امبر، تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. جی ڈاکٹر سمر، آج کا بہت اہم ٹاپک ہے، یقیناً سب کے دل سے بہت قریب بھی، کیونکہ ہر کسی کے گھر میں اس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی موجود ہوتے ہیں، اور یقیناً کہتے ہیں کہ نہیں جی، بزرگوں کے گھر میں ہونے سے بڑی برکت ہوتی ہے. کا خیال بھی کیسے رکھنا ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ ایجنگ، واٹ از ایجنگ؟ یہ ایجنگ ہوتی کیا ہے؟ بڑھاپا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو امبر بہت بہت شکریہ اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اور ہم لوگوں نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کو اویئرنیس پہنچائی جائے اس بارے میں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم ایلڈرلی کی بات کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کس ایج گروپ کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا، جو ہماری پاپولیشن میں ہم لوگوں نے کاؤنٹ کیا ہے، ہم لوگ اور باہر بھی 65 ایئرس اینڈ ابو وہ اس ڈومین میں آتے ہیں، صحیح، ایلڈرس کی ڈومین میں. اچھا، اب وہ ارلی ایلڈرلی کہتے ہیں اس کو. اب ظاہر سی بات ہے، جیسے ایج پروسیس بڑھے گا تو باڈی کے ڈفرینٹ اعضاء کمزور ہوتے ہیں، اور جیسے ایج گزرتی جاتی ہے تو ہم اس کو ایجنگ کا پروسیس کرتے ہیں، اور 65 ایئرس ابو کو ہم اس گروپ میں شامل کرتے ہیں. اچھا، اس کا دوسرا نام بھی کہتے ہیں، اس کو جیریاٹرکس بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ کہیں اور نام سنیں کہ جیریاٹرک سروسز ہیں تو یقیناً وہ بزرگ لوگوں کی یا ایلڈرلی کیئر لوگوں کی سروسز ہیں. تو 65 پلس جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سروس میں آتے ہیں، اور اس سروس کو جیریاٹرکس کہا جاتا ہے. تو ایز دا ایج پروگریسز the process of aging started. And what is aging? Aging ایک سمجھے کہ ایک قدرتی تحفہ سمجھے عمر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ کے دماغ کے سیلز اور باقی چیزیں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں اس کا خیال کیسے رکھنا ہے اس پہ ابھی ہم بات کریں گے. بالکل. اگر ہم بالکل جیسے آپ نے کہا کہ 60 سال یا 65 سال سے اوپر، تو جب ہم اس ایج کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ اگر ہم سب سے پہلے کرونک ہیلتھ کنڈیشنز پہ بات کریں کہ ایسے لوگوں کو کس قسم کی کرونک ہیلتھ کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیں، ایک تو آپ نے لفظ استعمال کیا کرونک کنڈیشن. اچھا، کرونک کنڈیشنز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرونک کنڈیشنز ایک سیپریٹ گروپ ہے، اور جو خاص طور پہ اولڈ ایج میں ہوتے ہیں وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کرونک کنڈیشن جتنی بھی ہیں جس پہ میں نام بتاؤں گا، ایسے مریضوں میں، ایسے بزرگ لوگوں میں اس کا خیال بہت اچھے سے رکھنا ہوتا ہے. جو کرونک بیماریاں ہیں وہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، تو ان میں خاص طور پہ جو 50 سال یا 40 سال کے ان کو بھی ڈیفینیٹلی خیال کی ضرورت ہے، بٹ ایسے 65 پلس کو کیئر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو کرونک کنڈیشنز ڈیفینیٹلی پہلے بھی کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہیں، لیکن
इस एज में, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो बुज़ुर्ग लोगों में होती हैं, अगर आप सर से लेकर पाँव तक शुरू करें, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो भूलने लग जाते हैं, बिल्कुल, जिसको हम डिमेंशिया भी कहते हैं, डिमेंशिया भी कहते हैं। एक होता है कि बुजुर्ग हैं, 65 साल हैं, अलग रहते हैं, अकेले हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन क्या कि आपका लो मूड है, किसी काम में दिल नहीं करना। आपने ये भी देखा होगा, आपके घर में भी, मेरे घर में भी, आंखों की कमजोरी अक्सर लोगों को एज में मोतिया, सफ़ेद मोतिया हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो दिल, शुगर, गुर्दे और इन सब चीज़ों, वो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। अच्छा, चलते हुए गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉल हो सकता है, फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, उसकी वजह से फिजिकल इंजरीज हो सकती है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है इसमें जो अक्सर ओवरलुक की जाती है, इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, पॉलीफार्मेसी कहते हैं, क्या उनको इतनी दवाइयों की ज़रूरत है? कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ दवाइयाँ उनको नुकसान ही पहुंचा रही होती हैं। तो अब अगर इसका एग्जैक्ट रैशनल देखा जाए, वही दवाई उनको हो सकता है 10 साल पहले वो सूट कर रही हो, लेकिन अब वो सूट नहीं कर रही, क्योंकि या तो वो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रही हो। इसी तरह डिजीनेस है, कमजोरी है, थकन है, कब्ज की शिकायत बहुत होती है, कॉन्स्टिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैडर इश्यूज हो जाते हैं, कान का मसला हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम वन बाय वन एड्रेस कर देंगे। लेकिन ये कॉमन चीजें हैं, एक ये ग्रुप है और एक जो ग्रुप है जिसका क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, जिस तरह आपने शुगर, ब्लड प्रेशर, तो दोनों को हमें साथ में लेके चलना होता है। एक और चीज जो इन सब चीजों के साथ, मतलब हमें ये देखना होता है कि एक, इसीलिए ये एक सर्विस हम कहते हैं जेरियाट्रिक सर्विसेज। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये ऐसे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए जाके जहाँ पे अंडर वन रूफ सारे मसले हल हो जाए। लेकिन खाली जेरियाट्रिक यानी जो डॉक्टर है उसका काम नहीं है, इसमें हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जिसमें हम जब बात करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आ जाता है, इसमें हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आ जाता है, इसमें हमारे पास नर्स का रोल आ जाता है, इसमें पर्सनल केयर घर पे कैसे करनी है, इसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है कि उनसे बात करें कि भाई वो लो मूड चल रहा है, भूल रहे हैं, क्या वजह है। तो डेफिनेटली ऐसी, तो हम लोग भी ऐसी ही प्लान कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी सर्विस है जो हम लोगों ने अंडर वन रूफ ये सारी चीज़ों का, और हमने ये इसके चार्जेस भी बहुत कम रखे हैं हमने। बिल्कुल, आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत ही ज़बरदस्त, डॉक्टर समर आपने बताया, ये बिल्कुल इन सबको हम सम अप करें तो ये हेल्थ इश्यूज़ ओल्ड एज में हम बिल्कुल देखते हैं। हम चाहेंगे कि छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इसके बाद एक एक चीज़ को हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मेंटल हेल्थ है तो कैसे हम उनका ख्याल रख सकते हैं कि वो पॉइंट ना आए कि वाकई डॉक्टर के पास जाना है, शुरू दिन से कैसे उनका ख्याल रखना है, फिजिकल इंजरीज ना हो तो क्या टिप्स आप देंगे, तो एक एक करके सब पे मजीद डिस्कस करेंगे। सामीन हमारे साथ ही रहिए, बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। We will be right back after this short commercial break. सिर्फ रॉयल एसीबीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग, रॉयल साथ जिंदगी भर का।
आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज एंड हेल्थ इश्यूज के ऊपर। डॉक्टर समर अब्बास जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। बहुत ही अहम मौजू है। डॉक्टर समर ने बहुत अच्छा इसको समअप किया कि इस एज में हम क्या क्या ऐसे मसले, ये बहुत कॉमन डॉक्टर समर मसले हैं जो आपने हमें बताया, जो हम आम घर में बिल्कुल हर दिन देख रहे होते हैं। डॉक्टर समर, मैं चाहूँगी कि हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। हम मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ऐसी इस तरह टिप्स ऐसी दें कि हम किस तरह डेली लाइफ में इन चीज़ों से अपने बुजुर्गों को दूर रख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है मॉडिफाइबल, एक है नॉन मॉडिफाइबल। अच्छा, जब मॉडिफाइबल की बात करते हैं तो सबसे पहले एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, घर का। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको तकलीफ़ दे रही है तो हम चीज़ वो ना करें। मसलन किसी ने गुस्से से कह दिया, किसी ने कोई उनको डांट दिया, बुज़ुर्ग लोग बच्चों की तरह होते हैं, तो अगर किसी ने उनको डांट दिया, किसी ने गुस्से से कह दिया, कोई इग्नोर कर रहा है तो वो चीज़ ना करें, वो भी उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो ये तो मॉडिफाइबल है। कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको दूसरी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स से कह के वो बचा सकते हैं। वो क्या है? डेफिनेटली उनको ये है कि 65 साल के हो गए, हमारे दिन करीब आते जा रहे हैं, हमारी सेहत कमज़ोर, हम वो नहीं होंगे जो 50 साल की या 40 साल की उम्र में होंगे। उनको फाइनेंसिस का इश्यूज होते हैं, अर्निंग पहले थे अब अर्निंग नहीं है। अच्छा, ग़िज़ा, पहले ग़िज़ा अच्छी थी अब ग़िज़ा कम है। तो डेफिनेटली कुछ मॉडिफाइबल है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल, जिस तरह हेल्थ है, जिस तरह अर्निंग है, वो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि उनको यानी अगर हम ग़िज़ा को भी बेहतर करना चाहें, हम उनके घर के माहौल को ठीक करें, हम उन पर गुस्सा ना हो, उनका केयर बहुत अच्छा करें, तो ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो 15% ऑफ द एडल्ट, हम पूरी दुनिया में बात करें तो वो इस वक्त मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो सोशल इंटरेक्शन इस एज ग्रुप में कितना अहम है? अच्छा देखिए, एक बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे उनकी मेंटल इलनेस से आप काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है, देखिए अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करें, मैं बार बार ये बताऊंगा, और क्योंकि हम लोग वो काम कर रहे हैं तो मुझे वो बताना ज़रूरी है। जितने लोगों से हम मिलेंगे, जितने लोगों से गैदरिंग करेंगे, बिज़ी रहेंगे, लेट्स से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। जब आपका दिमाग एक्टिव रहेगा तो आप अकेलापन का शिकार नहीं होंगे। जब अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे तो आपका दिमाग लो मूड में नहीं जाएगा, आप लैक ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होगा, तो आप चाहेंगे और खेलें। तो इससे आप काफ़ी मेंटल इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हमने अंडर वन रूफ यही सर्विस रखी हुई है। हमने लोगों के लिए क्या किया हुआ, 9 to 5 की सर्विस है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आप आएँ हमारे पास, हम आपको खाना भी देंगे, हम आपको गेम्स भी खिलाएंगे, हम आपसे बातें भी करेंगे, हम आपको चलाएंगे भी। तो ये सारी हमने अंडर वन रूफ सर्विस की है। तो हमारा यही मोटो है कि जिस तरह आपने 15% कहा, तो अगर हम अपनी हॉस्पिटल की पॉपुलेशन कह लें ना, तो हमारे पास 10% तकरीबन बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, 65। क्यों? क्योंकि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स बुजुर्ग लोग ज्यादा दिखते हैं। पहले आप देखते होंगे पाकिस्तान में एवरेज एज 50s में थी, अब इट्स इंक्रीज इनटू 60s डाउन। तो अब यही चीज़ है। इसी से तो आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि क्या मिलने से, बात करने से बिल्कुल काफ़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर वो एक्टिव रहें तो। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छा एक शो किया था डॉक्टर समर, लियाकत नेशनल के हॉस्पिटल थे। हमारा टॉपिक था जी आओ बात करें। ओके, ठीक है, तो आओ बात करें। हर चीज़ पे हम आजकल के इस भागती भी दुनिया में और एक तेज़ रफ्तार
दुनिया में आई थिंक लगता है बात करने का हम अब बुजुर्ग लोगों के साथ कर सकते हैं बिल्कुल जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम बुजुर्ग लोगों के साथ दोबारा कर सकते हैं। बिल्कुल घर जाने के बाद। और आप यकीन करें कि एक ये नई रिसर्च भी है कि हमारे बच्चे खुद मतलब हम ज़ाहिर कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये जो दादा दादी और नाना नानी का रिश्ता होता है स्पेशली अपने पोता पोतियों उनके साथ, तो ये रिसर्च है कि अगर ये आपस में दोस्त बन जाते हैं तो, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटी उम्र के लोगों में बच्चों में भी डिप्रेशन आ रहा है, तो अगर इन दोनों के कनेक्शन स्ट्रांग होंगे तो ये डिप्रेशन जैसी चीज़ हटती चली जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, आपने अभी खुद कहा ना कि ये बुजुर्ग लोग ऐसे ही हो जाते हैं जैसे बच्चे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो हमारे बच्चे अगर इन हमारे माँ बाप और इनसे ज़्यादा दोस्ती करेंगे तो ये एक इस पॉइंट को हम कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, इस पर आप ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि विजन और हियरिंग इश्यूज भी बहुत देखे जाते हैं इस ग्रुप के अंदर, तो किस किस्म के प्रॉब्लम्स हम देखते हैं अगर हम विजन और हियरिंग इश्यूज की बात अच्छा करें, देखिए, और उसको कैसे हैंडल करें? एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर बुजुर्ग लोग जो एक हम लोग उसको कहते हैं सिनाइल कैटरैक्ट, यानी मोतिया हो जाता है, अगर उनको लगे कि उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है तो डेफिनेटली आंखों के डॉक्टर के पास जाएं और चेक कराएं कि कहीं मोतिया तो नहीं हो गया, और ये बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत कॉमन है। दूसरा, अक्सर वो कहते हैं हेयरिंग प्रॉब्लम है। हेयरिंग प्रॉब्लम जब मैंने अपने मरीजों के साथ एक्सपीरियंस किया, बुजुर्ग लोगों में हेयरिंग प्रॉब्लम अक्सर कानों में वैक्स जमा होता है, सफाई नहीं होती, तो यकीनन वैक्स को साफ करवाएं, कान के डॉक्टर के पास जाएं, अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो कान और आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फिज़िकल इंजरीज के बारे में, जो बहुत ही अहम है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है जैसे आपने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस और इसके प्रॉब्लम्स एक एज में आके शुरू हो जाते हैं, तो इसमें ऐसे मरीज तो मैं नहीं कहूँगी, सॉरी, इस एज ग्रुप को हमें फिज़िकल इंजरी से कैसे बचाना चाहिए? बहुत, ये भी एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। आपने जो अभी बात पूछी है, ये हम घर में एक्सपीरियंस करते हैं, और कैसे बचाया जाए, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक बुज़ुर्ग है जो चल फिर रहे हैं खुद से, वो तो एक नॉर्मल, एक है जो स्टिक के साथ चल रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों की एक रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलने की बात करते हैं तो फ्लोर कैसा है, स्लिपरी फ्लोर तो नहीं है, तो पानी तो नहीं पड़ा हुआ। अब बैठना है कहीं जाके तो इस हाइट पे बैठें कि खुद से उठ सकें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ज़मीन पे उनकी चेयर ऐसी हो कि ऊपर, लेट्स से वॉशरूम जाते हैं तो उनका पॉट चेयर ऐसा होना चाहिए कि वो फ़ौरन उठ सके। घर में या वॉशरूम्स में रेलिंग्स होनी चाहिए ताकि वो पकड़ के चलें। तो कुछ चीज़ें जो हमारे पास इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो हमारी मदद करते हैं कि रोज़ाना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको घर पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके हवाले से हमें वो चीज़ें देनी होती हैं। अब जूते हैं तो जूते कौन से पहनने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कपड़े हैं तो कपड़े कौन से पहनने चाहिए, तो घर पे फ्लोरिंग, कारपेट्स, वायर्स वगैरह सारी चीज़ों को देखना होता है। तो घर के पूरे माहौल को चेंज करना है, घर के पूरी इन्वायरमेंट को। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उनको स्टिक दे रहे हैं, स्टिक की ज़रूरत ना हो। तो डिपेंड करता है, इसको हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की बात करते हैं कि उनको रोज़ाना की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, तो दोनों काम करते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम बताते हैं कि किसको किस तरह किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा मसला आता है कि जब हम एक ओल्ड एज या एल्डरी ग्रुप के उसमें जाते हैं तो नींद का बहुत मसला होता है। लोग कहते हैं मुझे हमें नींद नहीं आती पूरी पूरी रात, और फिर एक कंटिन्यूस मेडिसिन का इस्तेमाल भी, बहुत सारी मेडिसिन हम देखते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग हजरात होते हैं मुट्ठी भर के तो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, मतलब सालों से वो दवाइयाँ चले जा रही होती हैं। तो क्या डॉक्टर का फॉलोअप, अगर वो सही है या उनकी क्या स्टेटस है उन दवाई खाने के बाद, तो डॉक्टर फॉलोअप कितना इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन कितनी लेनी चाहिए, नींद का ना पूरा होना, इन सब चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए वी आर द जेरियाट्रिशियंस हियर, वी आर द फिजिशियंस हियर। तो फिजिशियन के पास जाएं, जेरियाट्रिशियन के पास जाएं, कि जेरियाट्रिशियन पाकिस्तान में बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो अब हम लोगों ने वो स्टेप लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें मसले। लेकिन आप लोग अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ उनको इस एज में नुकसान दे रही होती हैं।
कुछ दवाइयों का भी इफेक्ट होता है, नींद ना आना, हो सकता है वो दवाई कर रही हो। अच्छा, कुछ लोग डर के मारे ये दवाई खाऊंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उस डर के मारे भी एक डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप हो जाती है, नींद हो जाती है। तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना फ्रीक्वेंट, पहले जाएं, अकॉर्डिंगली दवाइयाँ एडजस्ट करें और अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर बताएंगे 3 महीने में आना है, 6 हफ्ते में आना है, 6 महीने में आना है, तो वो अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको तजवीज़ कर देंगे। लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, और ताकि वो आपकी मेडिसिन को एडजस्ट कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सम टाइम हमें ये भी नहीं पता, मतलब मरीज़ खुद भी डिसीजन ले लेता है इस एज ग्रुप के लोग कि हमें ये वाली दवाई नहीं खानी है। हम खुद अपनी मर्जी से भी नहीं खाते, सारे इंसान एक अरसे से दवाइयाँ खा खा के तंग भी आ जाता है, तो खुद भी हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं आज ये दवाई नहीं जो कि खानी। ना होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन या अपनी तरफ से कोई भी फैसला लेना, दवाई लें ना लें, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, दिस इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ भी ऐड करके बताएं कि जो घर के लोग हैं, सारे बुजुर्ग खुद भी तो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, लेकिन घर के लोगों को कितना ज़रूरी है उनकी दवा को मॉनिटर करना कि खाइए कि नहीं खाइए। देखिए, बुजुर्ग लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, और जैसे मैंने बताया कि उनके साथ कोई ना कोई केयरर तो होता ही है। अगर कोई केयरर नहीं है तो किसी केयरर को होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी दवाइयों की मैनेजमेंट उनके घर वाले ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको याद नहीं रहेगा कि वो कौन सी दवाई लेनी है, किस टाइम लेनी है, ली है कि नहीं ली, भूले हैं या नहीं भूले। तो उनको दवाइयों को प्रॉपर तरीके से कोई ना कोई मॉनिटर करे, चाहे वो उनका बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, या उनका कोई केयरर है, पर्सनल अटेंडेंट है, तो दे नीड टू मॉनिटर कि वो दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर समर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ज़ाहिर है एक इस एज में आके मसल वीकनेस भी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डिफरेंट और चीज़ें हैं, तो फिजियोथेरेपी, क्या वाकई में इस एज के लोगों को किसी न किस्म की फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत होती है? बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से आपकी मसल की पावर बिल्ड होती है। मसल आपकी जो वीक हो रही होती है, वो फिजियोथेरेपी से आपकी, लेट्स से आप इसको इस तरह कह लें, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपके पट्टे कट जाएंगे, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। सॉरी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी से पावर मसल की वापस आती है, तो उससे आपको चलने में जो दिक्कत हो रही होगी मसल की वीकनेस की वजह से, उससे इम्प्रूवमेंट मिलती है। ख़ास तौर पे आपके थाई के मसल्स होते हैं, बैक के मसल्स होते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ये करते हैं, तो ये फिजियोथेरेपी की मदद से आपकी पावर रिगेन हो जाती है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सामीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर समर से कोई भी आप सवाल डायरेक्ट फ़ोन करके पूछना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। फेसबुक पे लाइव हमें देख भी सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें तो वहाँ पर भी www.fb.com/hotfm105 पे जाइए, वहाँ भी सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और 8881 के ऊपर भेज दीजिए। Stay tuned with us. We will be right back after this short commercial break. सिर्फ रॉयल एसीबीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। पावर बैलेंस मोटर से 50% बिजली बचे। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग, रॉयल साथ जिंदगी भर का।
आपके साथ आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, हमारा ये शो आप सुनते हैं हर जुम्मे को 10 बजे से 12 बजे तक, आधा घंटा हमारे पास मौजूद है। सामीन, आप कॉल कर सकते हैं हमेशा की तरह 021-111-000-105 के ऊपर, 021-111-000-105 इस पे आप कॉल करके डॉक्टर समर अब्बास जाफरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर समर ने बहुत अच्छी बात एक बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ऐसा एक पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये तमाम अडल्ट पीपल आ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते आप यकीन करें, हमने तो अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट भी, जो कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, दैट इज ऑन 16th of August सुबह। लेकिन एक वन रूफ में, अच्छा उसका एक और फ़ायदा ये है कि हमारी वो जो क्लिनिक है वो हमारी बड़े डिस्काउंटेड रेट में भी है। तो यानी 4 लोग आपको एक अंडर वन रूफ एक कमरे में, यानी एक ही एरिया में आपको देखेंगे, तो वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारी। बिल्कुल। और डॉक्टर समर, पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप या बुजुर्ग अपने घर वालों की बातें सुन सुन के ना तंग आ जाते हैं कि यार सारा दिन ये लोग हमें इंस्ट्रक्शन ही देते रहते हैं। ऐसा भी होता है, और चाहे हम अच्छे ही उसमें क्यों ना दे रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए हमारा ये आइडिया था कि लेट्स से कि कोई अगर घर पे अकेला है, कोई बोर हो रहा है, कोई सिर्फ बेटा है बेटी काम कर रहे हैं, वो उनको छोड़ के चले जाएं, एक्टिव किया फिर शाम को वापस पिक करते हुए चले जाएं, तो ये ऐसी और डिफरेंट एक्टिविटीज भी है वहाँ पे। बिल्कुल। एक कॉल थी फिर डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा डॉक्टर समर, हम इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ इशू पे डिस्कस करते हैं। ग़िज़ाइयत की कमी अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है, सब इंसान इस एक ग्रुप में जाता है तो बहुत सारी ये भी इंस्ट्रक्शन है जी आप शुगर के मरीज़ हैं, आपने ये नहीं खाना, नमक मत खाओ, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा, मीठा नहीं खाओ, बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद अपने माँ बाप के ऊपर, मैं खुद भी शायद अपनी अम्मा को कहती रहती हूँ अम्मा मीठा नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, वो भी तंग आ जाती है कि यार सारा दिन पीछे पड़ी रहती है। तो फिर ग़िज़ाइयत की कमी क्या वाकई ये हो जाती है? अच्छा देखिए, जहाँ तक बात है ग़िज़ाइयत की कमी की, जैसे मैंने बात की कि एजिंग के साथ ज़ाहिर बात है, अगर आप लेमन टर्म में बात करें कि दिमाग के सेल्स भी सिकुड़, दिमाग भी कमज़ोर होता है और दिमाग हर चीज़ को सिग्नल देता है खाने। एक कॉल शामिल जी, करने पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरी जो एज है ना वो 70 के करीब है। ठीक है। अब सारे प्रॉब्लम जो है ना ये डॉक्टर साहब ने बताए तो ये समझो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ टाइम लेके दिखलाना हो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप बता दीजिए इनको। गुलाम हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं लियाकत नेशनल के प्लेटफॉर्म से हूँ, मैं लियाकत नेशनल में बैठता हूँ। तो आप लियाकत नेशनल में पीर के दिन हमारी सीनियर सिटीजन रोज़ाना क्लिनिक होती है। मंडे टू नेक्स्ट वीक से मंडे टू सैटरडे हम करते हैं रोज़ाना क्लिनिक। मैं पीर के दिन और मंगल के दिन 11 से 1 बजे बैठता हूँ, और बाकी नाम समर अब्बास नाम है मेरा। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, हम खाने पीने ग़िज़ाइयत की कमी पे बात। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे दिमाग कमज़ोर हो रहा होता है तो दिमाग हर चीज़ को सिग्नल दे रहा होता है, खाने पीने को, जागने को, सोने को, चलने को। तो होता ये है कि अगर उनको भूख लग भी रही होगी तो उनका दिमाग सिग्नल ही नहीं देता। तो एक तो ये है कि वो डेफिनेटली आप उनको कुछ देंगे, वो कहेंगे भूख नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है भूख हो। तो वो एक तो कम ग़िज़ा लेना ग़िज़ा की कमी करवा सकता है। दूसरी बात, यहाँ तक बात है कि उनका दवाइयाँ इतनी होती हैं कि वो भी एक प्रॉब्लम करती हैं कि वो खाना ना खाएं, हो सकता है कोई दवाई प्रॉब्लम करी हो। तीसरा प्रॉब्लम, जिस तरह आपने कहा शुगर है, नमक लेने या नहीं लेना, देखिए नमक हम एक्स्ट्रा नमक मना करते हैं, और बुजुर्ग लोगों में हम तो ये कहते हैं कि शुगर का अगर हम कट ऑफ रखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि लो शुगर ना हो। बिल्कुल। तो कुछ लोगों को अकॉर्डिंग टू द उनकी जो शुगर्स की रीडिंग है या बीपी की रीडिंग के हिसाब से नमक और शुगर का इस्तेमाल हम वो बताते हैं, वो हर पर्सन वेरी टू वेरी करता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि जितने भी एल्डरली पीपल होते हैं उनको हम सारा दिन थोड़ा थोड़ा सा खाने को भी देते रहें, तो फ्रीक्वेंट बट स्मॉल मील्स, यस यू कैन डू दैट ना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, और डिफरेंट अगर हम मौज़ूआत पे बात करते हैं तो ओरल हेल्थ, दांतों की
मसले बहुत होते हैं, हम देखते हैं इस एज में बड़े मसले होते हैं, दांत खराब है, कभी कुछ है, बेचारों को हर बार डेंटिस्ट के पास ही लेके जाते रहते हैं। देखिए वो जाहिर बात है, वही फिर एजिंग का प्रोसेस है कि दांत को झड़ जाना, दांतों की सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके दांत ज़्यादा कमज़ोर है तो डेफिनेटली दंदान साज के बाद या डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके दांत सही होंगे तो आप चबाने वाली चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके दांत नहीं होंगे तो चबाने वाली चीज़ नहीं खा पाएंगे। तो बेहतर है, यस डेंटल हाइजीन इज़ द की, लेकिन सफाई सुथराई, मुंह की कुल्ली करना, ब्रश करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत काफ़ी झड़ चुके हैं तो आप दंदान साज के बाद अपने आर्टिफिशियल दांत लगवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर समर, बहुत दफ़ा हम अपने अगर बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो समटाइम बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐसे अमराज में वो मुब्तला होते हैं जिसमें वो बेड रिडन होते हैं, ठीक है, और घर में हम अपने मुताबिक उनका इलाज, मतलब उनकी देखभाल तो कर रहे होते हैं। तो क्या हमें ऐसे मरीज़ों के लिए घर में कोई नर्स या होम टेकर या कोई ऐसा बंदा हमें रखना चाहिए जो घर में इनकी देखभाल कर सके? अच्छा देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने भी हम लोग हैं, जितने भी जो नॉन मेडिकल लोग हैं, अगर उनके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो ट्रेन नहीं हैं, उनको डेफिनेटली रखना चाहिए होता है, क्योंकि उनको डेली लिविंग की जो ज़रूरियात हैं, जो बिस्तर पे हैं चीज़ें, कमर पे ज़ख़म ना बने, अगर पेशाब की नलकी लगी हुई है तो उसका केयर कैसे करना है, नाक की नलकी लगी हुई है तो उसका केयर कैसे करना है, खाना कैसे देना है, किस तरह देना है, मुंह से देना है, नाक की नलकी से देना है, तो डेफिनेटली केयरर इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन। लेकिन अगर कोई ट्रेन स्टाफ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उनकी ज़रूरियात कितनी है। कभी कभी ये होता है कि मैंने अपने फादर के लिए रखा था जब वो बीमार थे, तो डेफिनेटली ऑल्दो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं 24/7 बैठ नहीं पाता था, तो इसीलिए आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बेड रिडन अगर है तो उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है, लाजमी है। सही, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, समर अब्बास जी समर अब्बास। समर अब्बास जी, प्लीज कुछ कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद आशिम जिला शिकारपुर से। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? ये सवाल करना चाहूँगा कि जो ये मेरी ये है ना, इसमें एक हिस्से पे वो पसीना आता है, एक हिस्से पे पसीना नहीं आता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर समर बात कर रहा हूँ। जी, तो मेरे जो एक हिस्से पे काम भी पूरे दोनों सारे जिस्म जो हिलाता हूँ, काम करता हूँ ना, तो फिर एक हिस्से पे पसीना आता है ज्यादा, एक पे नॉर्मल आता है, ये किस वजह से बाजी? अच्छा देखिए, पहले तो बाजी नहीं है, मैं डॉक्टर समर हूँ, ठीक है। मैं अच्छा, दूसरी बात मुझे पता, आपकी उम्र क्या है सर? मेरी उम्र तकरीबन 25 साल तक है। अच्छा देखिए, 25 साल की उम्र है ना, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, करीबी डॉक्टर के पास, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना वो जितने भी 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो आपको करीब के डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर डॉक्टर समझते हैं तो फिर वो आपको रेफर करेंगे किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास, ठीक है। दूसरी बात है डॉक्टर साहबा, जी, तो मेरी सास है ना, वो तकरीबन 60 साल की उम्र है, उसको ये शुगर हुआ है, कभी पता नहीं चलता है, उसको 500 के ऊपर चला जाता है। हम गांव के बंदे हैं ना, गांव जब तक तो अस्पताल पहुंचे पता ही नहीं चलता है, इसको कैसा कंट्रोल किया जाए? अच्छा देखिए, बिल्कुल सही, देखिए 60 साल की उम्र उनकी है, शुगर उनको बढ़ी हुई है। आपको जो भी आपके करीब में क्लिनिक है उनको ये बताइए कि दवाइयाँ क्या क्या चल रही हैं। हो सकता है देखिए, या तो दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले रही, या दवाइयाँ प्रॉपर नहीं ले रही, या उनकी ग़िज़ा सही नहीं है, या वो मीठा इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं। कोई ना कोई तो वजह होगी कि उनकी 500 की शुगर होगी। यकीनन आम भी खाए होंगे, अभी आम आए थे, आम भी खाए होंगे। तो प्लीज़ जो भी है करीब के डॉक्टर के पास जाएं ताकि दवाइयाँ दिखाएं, और अगर उनको नहीं समझ आता तो फिर आप कराची आ जाएं, हम लियाकत नाशल में हम आपका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। जी बाजी, आपका प्रोग्राम चल रहा है। बाजी नहीं है, डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम चल रहा है नसीर अहमद हैदराबाद से। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। खलील अहमद भी सुन रहा है। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, आप लोग हमारा शो सुनते हैं। अच्छा डॉक्टर समर, हम जब बड़े बुजुर्गों लोगों की एक और कॉल पहले शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आजी बख्श बोला सर, आजी शाली गोट थेरेपी से जी। सर मेरा उम्र है 75 साल। ठीक है। जो मेरा कभी भी बाजू, जब मैंने इंट्रोड्यूस खुद कराया था अभी, मेरे बाजू कभी कभी डॉक्टर साहब कह रहे वार्म आ गया, आप इलाज करो। फिर मेरे को बोला कि आपका जो है ये नाप से नहीं, क्या बोलते हैं, हदूद बैठ गया है।
ठीक तो है। इसलिए अपने जो इसने अल्ट्रासाउंड जो कराया उसने बोले कि मैं आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप नेशनल में बैठते, हम जानते हैं सब डॉक्टरों को नेशनल को, क्यों मैं सामने वाले बंगले पे काम करता था पहले ना वहाँ पर, ठीक है। तो डॉक्टर साहब से ये मशवरा करना चाहता हूँ सर। अच्छा हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, डेफिनेटली ये हम लोगों ने टच नहीं किया है ये सवाल, और बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। होता ये है कि जितने भी मर्द हजरात हैं उनमें हर किसी के पास गुदूद होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनमें ये गुदूद बढ़ जाता है जो पेशाब की नाली की रुकावट करवाता है, और इसीलिए उनको बार बार पेशाब आता है, रात को शलवार में निकल जाता है, बिस्तर ख़राब हो जाता है, वॉशरूम जाते हैं तो आप रात को 4 मरतबा भी उठ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं तो वो शलवार में निकल गया। अच्छा, इसका सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वो गुदूद का साइज़ कितना है। अगर साइज़ इतना है कि वो दवाई से कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर इसका इलाज ऑपरेशन ही है, जिसके लिए हम यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है उससे पहले अल्ट्रासाउंड क्या है, पेशाब का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरह हमने अभी अंबर हमने कोई वो चीज़ डिस्कस नहीं की, बुजुर्ग लोगों में पेशाब का मसला, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कब्ज़ का मसला ये बहुत आम है, और उसकी वजह ये होती है कि वो पानी कम पीते हैं, पानी चलते कम है। जब पानी कम पीते हैं, अगर वो कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियेंगे तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, एक मसला उनके साथ ऑलरेडी चल रहा है, तो वो फीमेल में अक्सर पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, मर्द में गुदूद या पेशाब की नाली का यूटीआई देखा जाता है। तो होता ये कि वो अगर आप उनको वो पानी पीने का ज़्यादा कहेंगे जो कि ज़रूरी है, तो वो कहेंगे, वो पीते नहीं है जानबूझ के कि हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा रात को। कॉन्स्टिपेशन भी इसीलिए होती है कि पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, चलते नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी हाजी साहब, आपको मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और प्रॉब्ली आपको यूरोलॉजिस्ट से फिर कंसल्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले टेस्ट होते हैं, वो देखेंगे क्या है। ठीक है, एक और कॉल लेते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मेरी उम्र जो है ना 63 है। ठीक है। तैयब अली नाम है, कराची से बात करता हूँ। ओके। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत अच्छी है, ब्लड प्रेशर की टेबलेट खाता हूँ मैं 5 महीने की, नॉर्वे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रहा हूँ 8 घंटे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी सारा दिन पीता हूँ, यानी खाना पीना भी बिल्कुल सेट है, भूख भी लगती है, नींद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। लेकिन पेशाब का मसला है। अच्छा, रात में जो है कभी 3 बार कभी 4 बार पेशाब करना, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोने के बाद ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप बताइए। और उसके बाद जो है कुछ नमाज में भी तकलीफ होती है, उठना बैठना वो भी प्रॉब्लम होता है, बगैर सहारे के मैं खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बस आप बताइए जी, क्या प्रॉब्लम है? लाइव आप इसका जवाब सुनिए, डॉक्टर समर इसका जवाब बताते हैं। डॉक्टर समर, हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक है, पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम इनका जवाब बताते हैं कि क्या इनको मसला है। सामीन, डॉक्टर समर अब्बास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हम ओल्ड एज और उसके सारे हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर डॉक्टर समर ने बहुत डिटेल से हमें बताया। आखिर शो के 15 मिनट हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहें अपनी उम्र के मुताबिक, 60 साल से अब ऊपर के जो भी अफराद हैं, अगर कोई अपनी बीमारी पे सवाल करना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद अस। We'll be right back after this short commercial break. सिर्फ रॉयल एसीबीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग, रॉयल साथ जिंदगी भर।
सामीन अंबर आपके साथ आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन बहुत ही अहम टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं और बहुत छोटी छोटी बातें हमने डॉक्टर समर डिस्कस की, ऐसी बातें जिसका ख्याल रखकर हम अपने बुढ़ापे को बहुत अच्छा बना सकते हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकते। इन तमाम चीज़ों का ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही जाके पता चले, अपनी जवानी से ही हर चीज़ की तैयारी। बुढ़ापा तो हर किसी के ऊपर आना ही है, हम बच्चे पैदा हुए, जवानी, ये पूरा ज़िंदगी का एक सफ़र है जिस पे हमने जाना ही जाना है, ठीक है। लेकिन दिल जवान होना चाहिए। उम्र जो है ना सिर्फ नंबर होती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है। सही। एक कॉल पहले ऐड करते हैं, फिर लास्ट में कॉलर का भी जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? ये आलिया मुमताज बोल रही हूँ कराची से। जी आलिया। मेरी नानी का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब कि उनको जो है ना कब्ज की शिकायत है। अच्छा ठीक है। क्या उम्र है आपकी नानी की? तकरीबन 83। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अगर हम पहले कॉलर का जवाब दे रहे हैं, ऑल्दो मैंने वो उनका जवाब थोड़ा सा दिया हुआ है। अच्छा देखिए, जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए नॉर्वास्क लेते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिस तरह अभी मेरी अंबर से भी बात हो रही थी, तो क्या आपकी एज 63 है? यकीनन बहुत सी वजूहत हो सकती हैं इस बार बार पेशाब आने की, लेकिन आप में वही हुदूद का मसला हो सकता है, प्रोस्टेट का। लेकिन आपको अपनी शुगर चेक करना ज़रूरी है। कहीं शुगर तो नहीं बढ़ी हुई जिसकी वजह से पेशाब आ रहा है, कहीं आपको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार पेशाब आ रहा है। लेकिन चूंकि आपको कोई और बीमारी नहीं है और कोई दवाई ऐसी नहीं है, सिर्फ नॉर्वास्क लेते हैं, और आपने पहले डेफिनेटली, जब आप कह रहे हैं ब्लड प्रेशर है और आपने शुगर भी चेक की हुई होगी, फिर भी आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्ली होगा हुदूद का ही मसला जिसकी वजह से आपको बार बार आ रहा है। तो उसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट होता है और एक पेशाब के डॉक्टर से मशवरा करें और उनके पास जाएं और अल्ट्रासाउंड करके दिखाएं कि क्या हुदूद का साइज़ है, उसके हिसाब से वो आपको दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे। जो बहन ने अभी अपनी नानी के लिए पहले कॉल फिर इनका जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर नूर बात कर रही हूँ। जी नूर। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर समर को मैंने जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुना है ना, बहुत अच्छे से समझाते हैं या हर बीमारी के बारे में। अभी ये कुछ टाइम पहले एक दूसरे FM स्टेशन भी आए थे, वहाँ पे भी मैंने इनको डेंगू और मलेरिया के बारे में सुना था, तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था उन लोगों की डाइट, उन लोगों का। थैंक यू डॉक्टर समर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नूर आपका, आपने कॉल किया हमें। डॉक्टर समर, हम आलिया की नानी की बात कर रहे थे। कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन, कॉफ, कॉन्स्टिपेशन का। अच्छा देखिए, शी इज 83। आलिया देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपकी नानी की एज 83 है और बुजुर्ग लोगों में कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये देखें वो चल फिर नहीं रही होंगी, तो फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं कर सकती तो पानी की मकदार कितनी ले रही है, पानी ज़्यादा पीना है। तीसरी चीज़ ये कि ग़िज़ा में फ़ाइबर इंटेक कितना है, क्योंकि फ़ाइबर इंटेक अगर आप लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से आप बच सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा गोश्त खिलाएं, उनको सब्ज़ी खिलाएं, उनको फ्रूट्स खिलाएं, तो प्रॉब्ली कॉन्स्टिपेशन की कोई ना कोई वजह होगी। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन है तो डेफिनेटली अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बेहतर मशवरा करेंगे, बताएंगे आपको। अच्छा डॉक्टर समर, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि फेफड़े हमारे जो लंग्स जिसे हम कहते हैं, वो भी इस उम्र में आके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैंने यूजुअली देखा है कि इस उम्र के मरीज़ों को या तो एलर्जीज़ या फिर और इस किस्म के मसले होते हैं, उनको अस्थमा बहुत ज़्यादा होता है। हम यूजुअली देखते हैं कि इन्हेलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस उम्र के लोग। तो क्या ये मसला भी आप फेस कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें आपने सही कहा, लेकिन ये अगर कोई इन्हेलर यूज़ कर रहा है, ख़ास तौर पे ये जो बुज़ुर्ग लोग कर रहे होते हैं, यकीनन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिगरेट पी होती है, या कुछ ख़वातीन ऐसी है जिन्होंने लकड़ी पे खाना पकाया होता है, या कुछ लोग काम ही ऐसा करते हैं जिनका एक्सपोजर ही प्रॉब्ली डस्ट से है या छतों से है, या वो लकड़ियों का काम करते हैं, तो वो इन्हेलर लेते हैं और उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जिसके लिए हम यही कहते हैं कि या तो वो शुरू से ही सिगरेट ना पिएं, खाने का पकाने का, वो डेफिनेटली पुराने ज़माने में इंटीरियर में भी और हमारे पास भी लकड़ियों पे खाना पकता था। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम बुज़ुर्ग लोगों के लिए कहते हैं वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और जिस तरह आपने ये सुना होगा कि हर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वैक्सीनेशन आती है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, नमूनिया की वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन जिस तरह मैंने बताया। तो वैक्सीनेशन करवाएं अपने डॉक्टर की मुशावरत से
کہ کون سی ویکسین کب لگوانی چاہیے. فلو ویکسین ہے تو ہم ہر سال پہ لگوا سکتے ہیں, کوئی اور ویکسین ہے نیموکوکل ویکسین, نمونیا کی ویکسین ہے تو ہر 5 سال پہ یا 10 سال پہ, جو بھی ہے وہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے اور آپ کی کنڈیشن. لیکن ظاہر سی بات ہے جو رسک فیکٹر ہے وہ الگ سے پھیپھڑے چلتے ہوئے کچھ لوگوں کے, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کی یہ فیکٹرز موجود نہ ہوتے ہوئے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں, جس کو ہم انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن جو ہمارے پاس فیکٹرز ہیں جو سگریٹ کی وجہ سے, لکڑی کی وجہ سے, ڈسٹ کی وجہ سے, مٹی کی وجہ سے, الرجی کی وجہ سے, دھول کی وجہ سے, ان چیزوں کو ہم کچھ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, لیدر فیکٹری, پروفیشن ایسا ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ نے وہ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے یا ماسک پہننا ہے. بالکل آپ سے کہہ. اچھا ڈاکٹر سمر, ایک ہمارے پاس SMS ہے, اس پہ ہے کہ جیسے بزرگ جب کووڈ کا دور تھا تو بہت زیادہ ہی کہا جاتا تھا کہ اپنے بزرگوں کا بہت زیادہ خیال کریں کہ اس عمر میں امیون سسٹم اتنا آپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو ویکسینیشن پہ ہے کووڈ کی کہ ہم ان کو جو بوسٹرز آ رہے ہیں وہ کتنے عرصے کے بعد اپنے بڑوں کو بوسٹرز لگواتے رہنا چاہیے. اچھا دیکھیں, ابھی اگر کووڈ کی بات کر رہے ہیں تو کووڈ کی ویکسینیشن جو ہماری ریکمنڈیشن جو تھی, اب تو یہ ہے کہ آپ پہلے تو اب یہ ایک تو کنفرم ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک بوسٹر, تو 2 ویکسینیشن آپ نے لگوائی, ایک 6 مہینے کے اندر آپ ایک بوسٹر لگوا لیں. اب یہ کہتے ہیں کہ دوسرا بوسٹر بھی لگا, لیکن آگے کتنے عرصے تک یہ بوسٹر لگنا ہے یہ ابھی تک کوئی ایسی گائیڈ لائنس نہیں آئی, کوئی لٹریچر نہیں آیا کہ کتنے عرصے تک آپ اس کو بوسٹر. یہ ریگولرلی فلو کی طرح نہیں ہے کہ آپ ہر سال لگائیں, جب تک کہ ہمارے پاس ریکمنڈیشن نہیں آتی تب تک ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. صحیح, بالکل. سامعین آپ ہمارا شو سن رہے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون. ابھی بھی ہمارے پاس شو کے 7 سے 8 منٹ ہیں. سامعین آپ کے سوالات کو اور مزید ہم شامل کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. اچھا ڈاکٹر سمر, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کے بوڑھے افراد یا جو بھی ماں باپ ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, سم ٹائم ہم سیلف میڈیکیشن ہم لوگ خود بھی کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ چلو یار یہ گولی نکال کے دے دو. تو کیا ایک پرٹیکولر چلیں, ایک تو اپنی ان کی دوائیاں چل رہی ہیں, لیکن سم ٹائم کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, ایک دم موشن ہو گئے یا کچھ ڈائریا ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں ڈائریا کی بہت زیادہ شکایت بھی بزرگوں کے اندر بھی ہم دیکھی, جہاں ہم کانسٹیپیشن کی بات کرتے ہیں وہاں ڈائریا بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اس میں دیکھا جاتا ہے. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیے کال پہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رابعہ. میری امی کا نا وہ مسئلہ ہے کہ کھانسی ہوتا ہے, ان کو الرجی ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر صاحب سے آپ اسے بتا دیجیے. کیا عمر ہے آپ کی امی کی؟ سانس کا مسئلہ, ان کا عمر 47 سال ہے. 47 سال. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, دو آپ 47 سال کی ہیں, کھانسی یقیناً کسی نہ کسی چیز سے تو ہو رہی ہے, یقیناً الرجی ہوگی. تو الرجی کو تو آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کس وجہ سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے. آپ کو مٹی سے ہے, آپ کو کسی چیز کے کھانے سے ہے, کسی چیز کے پینے سے ہے, کسی چیز کے کوئی پرفیوم لگانے سے ہے, آپ کے گھر میں کوئی پرندے جانور تو نہیں ہے, قالین تو نہیں ہے, کچن میں کسی مسالوں سے تو نہیں ہوئی. تو یہ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی, آپ لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی سینہ سننا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, معائنہ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ ہاسپٹل آئیں یا قریبی ڈاکٹر کے پاس پلیز چلے جائیں. اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ ڈائریا کے پرابلمس بہت ہوتے ہیں, تو ہم گھر میں خود ہی سیلف میڈیکیشن کر کے صحیح بھی کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایک کانسیپٹ ہے, اور ہمارے ہسپتال میں مریض داخل ہوتے ہیں کہ ڈائریا ہو رہا ہے, رک نہیں رہا. دیکھیں, ہم ڈائریا کو روکنے کی ایک تو یہ ہے کہ گھر پہ بہت ساری دوائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, جو کہ ہم یوز کرتے ہیں, لیکن اپنی مرضی سے نہ استعمال کریں, کیونکہ وہ کانسٹیپیشن ایسا برا والا کروا دیتی ہیں تو پھر کانسٹیپیشن کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, قبض مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے کون سی دوائی لینی ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں ڈائریا رک نہیں رہا, ہم کہتے ہیں کہ جو ڈائریا آ رہا ہے, جو موشن ہو رہا ہے, ان کو ہونے دیں تاکہ جو انفیکشن والی چیز ہے وہ نکل جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کے روکیں گے تو پرابلم ہوگا, لیکن اس کا سلیوشن کیا ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ پانی کو برابر کریں, بیلنس کریں, چیزوں کو, نمکیات کو برابر کریں, کیونکہ ہمیں نمکیات کو برابر کرنا ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ. لیکن دوائی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے نہ دیں, اور کسی اپنی مرضی سے نہ دیں, ڈاکٹر سے پوچھ کے دیں, کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی سے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کانسٹیپیشن کرا لے اور وہ پرابلم کرے آپ. بالکل. اچھا ڈاکٹر سمر, بدلتے ہوئے موسم پر بہت زیادہ اثر, بدلتے ہوئے موسم, سردی سے گرمی, گرمی سے سردی, تو اس کا بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کے اوپر. تو میں چاہوں گی اس میں بھی چھوٹی سی ٹپ دے دیں کہ ان کا خیال کیسے رکھیں. دیکھیے, وہی بات ہے کہ جو موسم ہے اس کے حوالے سے کپڑے پہنیں.
موسم کے بدلنے سے ماحول میں کافی چیزیں چینجز ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کو سینے کے انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اکثر نزلہ کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب باہر جائیں، ابھی موسم باہر جائیں تو ذرا احتیاط سے جائیں. اگر سردی ہے تو گرم کپڑے پہنیں، گرمی ہے تو ذرا تھوڑے کاٹن کے کپڑے پہنیں. پانی کا استعمال اچھا رکھیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال اچھا رکھیں ایز پر دا ڈاکٹر ریکمنڈیشن. ایسا نہ ہو کہ میں کہہ دوں فروٹ لیں، شوگر کے مریض ہیں تو وہ اور زیادہ کھائے چلے جا رہے ہیں. تو پلیز ذرا احتیاط سے اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ جی. کیجیے. ایک اور کال لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ محمد رضوان بات کر رہا ہوں کراچی سے نا. محمد رضوان. جی محمد رضوان صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میری عمر تقریباً 76 سال ہے. ٹھیک ہے. مجھے جو ہے نا حدود کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے. سانس کی حدود اور سانس کی تکلیف ہے نا. تو میں کینسولین تقریباً 10 سال سے لے رہا ہوں نا. تو آج کل جو ہے نا 1-1.5-2 مہینے سے میرے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اور کچھ؟ مجھے پیٹ میں آج کل بڑا درد رہتا ہے نا. جب تک یہ پیشاب نہیں آ جاتی مجھے تو پیٹ میں درد ختم نہیں ہوتا نا. 2-3 مہینے سے ہی ہو رہا ہے. چل ٹھیک. سانس کی ذرا مجھے تکلیف ہے. اوکے جی، رمضان کے بعد. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. جی اچھا دیکھیں، جیسے آپ یہ تیسرے کالر ہیں جو بزرگ ہیں اور جن کو پیشاب کا مسئلہ اور غدود کا مسئلہ، اور یہ انہوں نے دوائی کا نام بھی بتایا جو 10 سال سے لے رہے ہیں. سر دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو دوائی تبدیل کرنے کی ضرورت ہو. آپ کا غدود کا سائز کتنا ہے یہ دیکھنا ہو. یہ پیشاب کی وجہ سے ہی آپ کے پیٹ میں درد ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے جنہوں نے آپ کو اس گولی پہ ڈالا آپ ان ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں. غدود کے ڈاکٹر کے لیے کون سا ڈاکٹر؟ یہ یورولوجسٹ ہیں بیسیکلی. پروسٹیٹ کے لیے جو غدود ہوتا ہے، جو پروسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے یورولوجسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن ٹیسٹ کرا کے جائیں، پیشاب کا ٹیسٹ کرا کے چلے جائیں، الٹرا ساؤنڈ غدود پروسٹیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے چلے جائیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ یہی وجہ. اگر یہ نہیں نکلتی پیٹ میں درد کی کیا ریزن ہے وہ ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے، ورنہ پھر آپ ہمارے پاس آ جائیے گا یا جو بھی آپ کے قریبی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلے جائیے. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمر. باتیں تو بھی بہت ساری ہیں لیکن وقت کم کی کمی ہے، گھڑی کو ہم روک نہیں سکتے. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آخر میں کوئی سامعین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ کیسا لگا شو پہ آ کے ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا نہیں، بہت بہت شکریہ. اینڈ بہت اچھا ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، اینڈ اٹ از ونڈرفل. اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، اور خاص طور پہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں کہ کس کو کس طرح کیسے خیال رکھنا ہے. باقی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ملاقات ہوتی رہے گی. جیسے ہم نے پلان کیا کہ جو آپ نے ایک پروگرام کیا تھا آؤ بات کریں، ہم بزرگ لوگوں کے ساتھ آؤ بات کریں کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ جی خیال رکھیے گا. آپ سب کے بھی اس شو پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمر. سامعین آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں بہت محبت سے کال کرتے ہیں اور ڈاکٹر سے اپنی صحت کے متعلق سوال جواب کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی ہے اور کہ جس کا کوئی علاج موجود نہ ہو، تو اپنا بہت خیال رکھیے. علاج میں تاخیر ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر سمر. بڑا اہم بات ہے کیونکہ آپ کی بیماری، یہ تاخیر جو ہے نا، یہ بیماری کو بڑھا سکتی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح ہونا چاہیے. سامعین اپنا بہت خیال رکھیے. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے اور نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. اتوار والے دن پوری قوم مل کے جشن آزادی بھی منائے گی. میں ایڈوانس میں میری طرف سے بھی سب کو ایڈوانس میں جشن آزادی مبارک. اپنے اس خوبصورت ملک میں اپنے خوبصورت ملک کو سنبھال کے رکھیے. آج کل جو حالات ہیں جس میں ہم ہر کوئی ایک ریس میں بھاگ رہا ہے، ایسا مت کیجیے. ایک دوسرے کا احساس کیجیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے. یقین کریں پوری دنیا میں اس جیسا ملک نہیں ہے. بہت ہی لیڈروں نے اپنی بہت ہی انتھک کوشش سے آپ کے لیے یہ ملک آزاد کروایا. اس کا خیال رکھیے، مل جل کے رہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیجیے، جتنی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی کیجیے، اور اپنے ملک کو صاف رکھیے. اپنا خیال رکھیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.